Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will start our exercise 2b and our topic is inverse function. Students, can you see the lecture on the screen? Yes, miss. Okay. Inverse function. As I told in last class we have studied about the definition functions. Okay, what is function, and we have solved exercise of 2a, and now exercise 2b consists of inverse function. So what is inverse function? An inverse function goes the other way. Let us start with the example. Here we have the function. Class, try to understand, is very important. Inverse function. So here we have function f of x is equal to 2x plus 3. This is, let's suppose we have given function is that now 2x plus 3 written as follow diagram. Here x is multiplying by 2 and 3 is added here. Okay, 2 is multiplying with x and 3 is added. So the when we take the inverse of this, जब हम इसका inverse लेंगे, then the inverse function goes the other way. Inverse function इसका हो जाएगा opposite. Opposite means 2 here is multiplying. So यहाँ पे 2 इधर multiply हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड की पोजीशन पे 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. हाउ टू Yes. सी, लेट्स सी. हम इसको इस तरह मैं आपको समझाती हूँ. वी कैन आई कैन अंडरस्टैंड यू बाय. लेट्स सपोज वी suppose that function of x is equal to y. Left hand side we suppose function of x is equal to y. So in place of function of x we will write y is equal to 2x plus 3. Class, is there any confusion? Are you getting my point? We will assume Yes. function of x is equal to y. We will equate function of x. In place of function of x, we will write y. We can take any other variable also. Now, you can see that when we talk about inverse, so inverse की बात हम जब करेंगे, so that's mean inverse में क्या होगा कि we will take out the value of x. For value of x, we will write plus 3 is adding here on the left hand side, it come in minus sign. So is equal to 2x. Okay, is equal to 2x. And now अब यहाँ पे क्या होगा क्लास, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. Then 2 is multiplying here, it come in position of denominator. This is inverse of x. So the inverse of x plus 2x plus 3 is y minus 3 upon 2. यहाँ तक clear है class? Yes. Or any confusion? मुझे एक मरतबा प्लीज समझा दें. Okay, I'm explaining you again. Listen to me. We are talking about inverse. Okay. So this symbol function of x we will assign. Let's suppose we will equate class. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Equate function of x with equal to y, and then हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We will find out the value of x. So plus 3 come in minus 3 and 2 is multiplying here, it come in position denominator. यहाँ पे x आ गया, that's mean we are taking this is the inverse. Okay, is there any confusion? Now the inverse is No. the inverse is usually shows by putting a little minus 1 after the function name like this. Class, this is the symbol to represent the inverse. ये inverse को हम इस तरीके से लिखते हैं. Okay, inverse mean minus 1 power. Okay, this is the notation. ये inverse लिखने का एक तरीका है. अब हम क्या करेंगे, function of x का inverse क्या है, means
f is multiplying here. अगर हम इसको इधर लेके जाएं, that's mean it means x is equal to function of inverse y. This means, ये देखिए क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मीन ये होता है कि f इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, ये उधर जाकर डिवाइड हो गया, डिवाइड के बजाय हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं. ओके, दिस इज रेसिप्रोकल फॉर्म. So we can say that f inverse of y. Students, are you getting my point? So now class, we will write f of x in, we will write f inverse of y. हम इसकी जगह पर लिखेंगे f inverse of y in place of f of x. f of x, f inverse of y. इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, f inverse of y, and then f of x is equal to 2x plus 3 is written. We will write f inverse of y is equal to y minus 3 upon 2. I also use y instead of x to show that we are using a different value. Okay, now class, let's see the real example, real application of inverse. Class, try to understand and listen to me very carefully. Class, the cool things about the inverse is that should give us back the original value. Let's suppose this is apple and apple turned into a banana. Let's suppose when the function f turned the apple into banana, मतलब ये हमारा function था और ये banana में turn हो गया, then the inverse function turns banana back to the apple. Means class, listen to me, apple से banana हमें turn हो रहा है हमारा function, और बनाना से, तो अगर हम बनाना से फंक्शन, बनाना पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो वापस किस में टर्न हो जाएगा, एप्पल में टर्न हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? मीन्स एप्पल पर जब फंक्शन हुआ तो वो किस में टर्न हो गया, बनाना में, और जब हम बनाना पर फंक्शन करेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा, एप्पल में टर्न हो जाएगा. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ inverse function. Okay class, now see the further example. We have given no, let it next class, listen to me very carefully. Let's suppose we have given example. So here, yes, solve, we can work out the inverse using algebra. Put y for f of x. They are saying that, देखिए क्लास, यहाँ पर हम function of x की जगह पर we will equate function of x is equal to y. हम इसकी जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, y. अब यहाँ पर देखिए +3 यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड. अब यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड. सो स्वैप साइड्स मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2. यहाँ सर हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. हमने पहले कहा था, मैंने आपसे कहा था कि x का ऑपोजिट क्या होता है, y होता है. y क्या है, y फंक्शन ऑफ इनवर्स होता है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्लास? ओके, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2b के थ्रू, ताकि आपको क्लियर हो सके. ओके ओके क्लास, आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9b. 9b में हमारे पास क्वेश्चन है, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4x माइनस 3. हमारे पास यहाँ पर फंक्शन गिवन है और फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x. हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सरसाइज 2b में फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है. तो लेट्स सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, let's suppose class, listen to me very carefully. We will equate, this is function of x is equal to 1/4 x minus 3. मैंने आपसे कहा, as I told you before, we will equate, हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x को, लेट्स सपोज we will equate the left hand side with
वेरिएबल, हम इसको इक्वेट करवा देंगे वेरिएबल से. आई एम इक्वेटिंग हियर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. ये देखिए क्लास, ये वाई के इक्वेट होगा. ओके, नाउ the function is equal to y, and equation we have given 1 upon 4 x minus 3. Class, is there any confusion? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ क्लास, दिस इज द टाइम वी हैव गिवन y फंक्शन. ओके, हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y का फंक्शन गिवन है. हम यहाँ पर किसका फाइंड आउट करेंगे? x का. ओके, अब यहाँ पर हम x का, क्योंकि इनवर्स की बात हो रही है, तो इनवर्स में हमारे पास. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, -3 is adding here, so we will shift on right hand side, it become left hand side, it come in sin 1y plus 3. क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मिस. नाउ क्लास, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 4 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे इट कम इन पोजीशन ऑफ, तो दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा? ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एंड देन वी विल राइट y plus 3 is equal to x. Is there any confusion class? Class, is there any confusion? नो टीचर. Okay, then class we can say that, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर C, x is also the inverse function of y. Here that x is inverse function of y. Okay, and then this is equal to x. यहाँ तक डन है क्लास? जब x is inverse function of y, so in place of x we will write y plus 3. See this question very carefully, and you have any confusion, so ask with me. In place of x I will write function inverse of y, because x is function of inverse of y. Now class, done. We have solved question number 1. See this question, and if you have any question in your mind, then ask with me. अगर कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर नहीं पूछना तो फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं. Done it class? Hello? Student done? Yes, miss. Okay, let's solve another question. Question number. Okay, I'm giving you another example also. समझ आ जाए. क्लास सुनिए, function of x is equal to 5x minus 4. So first of all, it is important to equate function of x with y. For inverse, we need to equate the function of x with any variable. So it is equal to y, and then we can say that x is inverse function of y. ये देखिए क्लास, ये y के इक्वेट है, तो ये फंक्शन, ये जो f है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये इनवर्स में है. ओके, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, function inverse of y. Now first we put this part into the question. Here y is equal to function of x start equating 5x minus 4. Now class, question we have function of x is equal to 5x minus 4. Okay,
and then we equate this y equal to 5x minus 4. Now class, here we will find out the value of x. For finding out the value of x, we will shift minus 4 into on left hand side, it become y plus 4 is equal to 5x, and then y 5 is multiplying here, 5 इधर multiply हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा like this, okay, is equal to x. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्लास आपको? हेलो स्टूडेंट्स, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो, ओके, No. देन क्लास, अब हम बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फंक्शन ऑफ एक्स वी एज्यूम दैट इक्वल टू 1 y. हमने ये एज्यूम किया था फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, ओके. Further, and we can say that function of x is equal to y, so we can say that x is inverse function of y, like this, inverse function of y. So we will put x is equal to function of inverse y, we will put function of inverse function of y plus 4 upon sorry, it's a 4, it's not y plus 4 upon 5 is equal to function inverse of y, like ये देखिए क्लास, function inverse of y. This is the answer of our question. Done? Yes, miss. Okay. And then let's move toward the question number 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सॉल्व करेंगे, मूव करेंगे. क्वेश्चन वी हैव further question, very easy exercise, try to understand. Question we have given, a function is defined by function of x is equal to x minus 7. So first we will find out the inverse function, and hence we will put the value of function of inverse 3 and then find it. So how to solve, let's see it. Question we have given, function of x is equal to x minus 7. We will equate function of x is equal to y. Okay, first of all equate function of x is equal to y, and then class please focus on the lecture, very important. x is equal to x किसके बराबर हो जाएगा क्लास, function inverse of y. Now first we will put y is equal to, we will equate the equation y is equal to x minus 7. हम यहाँ पे function of x की जगह पे क्या लिख रहे हैं, y, okay, because we are putting the variable y in place of function of x. Now class, minus 7 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये it will add, yes, is equal to x. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्लास? No, miss. मिस एक बार वापस समझा दे. ओके, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y, हमने ये यहाँ पर इक्वेट करवाया, ओके, एज्यूम किया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y. तो इन प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x हम इसके जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, y. एंड ओरिजिनल क्वेश्चन वी हैव x माइनस 7, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये रहा. एंड देन हम y की, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Now class, y plus 7 we will write as it is, equal to x. मैंने आपसे पहले कहा कि फंक्शन ऑफ x y के बराबर है, तो x यहाँ पर, y यहाँ पे फंक्शन ऑफ x के बराबर है. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये इनवर्स में आ जाएगा, ओके. अब हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे, फंक्शन ऑफ इनवर्स y. नोटिस दैट क्लास, जब हम यहाँ पर y की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ y होगा, ओके.
यहाँ पे क्लियर है क्लास? दिस इज इनवर्स ऑफ वाई। मतलब क्या होता है, देखिए इनवर्स का मतलब ये होता है क्लास, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वाई, फंक्शन इनवर्स ऑफ वाई। इसके साथ बैंड में -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। ओके, नाउ क्लास वी हैव फाइंड आउट द इनवर्स वाई। ओके, अब इसके बाद हमारे पास फर्दर क्वेश्चन ये है कि अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वैल्यूज फंक्शन x इनवर्स ऑफ 3, यानी कि मीन्स दैट क्लास वी हैव गिवन ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मीन्स x इज इक्वल टू, नाउ वी विल यूज x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स ऑफ y। सो नाउ क्लास अब हमारे पास ये गिवन है फंक्शन इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हम इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या गिवन है क्लास, फंक्शन ऑफ 3, मीन्स ये हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स ऑफ y। सो वी कैन टेक, पहले हम यहाँ से क्या करेंगे क्लास, ये फंक्शन इनवर्स मतलब f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इन -1 का मतलब होता है कि ये इस y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके, द टर्म, जैसे लेट्स सपोज क्लास अगर इसके ऊपर ये पावर -1 है ना, और आगे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल गिवन है, वी कैन से दैट f इज डिवाइडिंग विद y। इसका मतलब ये होता है कि f जो है y से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लाइक दिस। इसका मतलब ये होता है। ओके, इनवर्स का मतलब क्या होता है, y से f क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके, सो f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इट बिकम f ऑफ x इज इक्वल टू y। यहाँ तक कोई मसला क्लास? ओके, एंड देन क्लास हमारे पास यहाँ पर गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे गिवन है फंक्शन इनवर्स ऑफ 3, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स ऑफ, मतलब y हमारे पास गिवन होगा, जो ब्रैकेट में टर्म होगी क्वेश्चन में गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है 3, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ओके, जस्ट अ सेकेंड क्लास। ओके, एंड देन ये हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स ऑफ 3। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, फंक्शन इनवर्स ऑफ 3 को, यहाँ तक क्लियर है आप सबको क्लास या नहीं? ओके, नाउ क्लास मैंने आपसे कहा कि फंक्शन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इस तरह से, अभी ये आंसर नहीं आया, अभी हम सोल्यूशन कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन इधर f इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इट बिकम f(x) इज इक्वल टू 3। नाउ क्लास अब हम इसको इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी रियल इक्वेशन ये रही, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7, हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इन इक्वेशन, ओरिजिनल क्वेश्चन। ये देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर पुट कर देंगे, f ऑफ x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू x माइनस 7। नाउ क्लास -7 जब माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -7 कन्वर्ट इनटू +7, देन वी विल solve and find out the value of x which is equal to 10। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्लास? x is equal to 10। yes स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या सॉल्व होके आया, मतलब when we have फंक्शन इनवर्स ऑफ 3, जब हमारे पास फंक्शन इनवर्स ऑफ 3 था, तो हमारे पास y का आंसर क्या आया, हमारे पास x का आंसर क्या आएगा क्लास,
यहाँ पर फंक्शन इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 10। आई एम रिपीटिंग एक्सप्लेनिंग अगेन। मैं आपको एक दफ़ा और समझा देती हूँ ताकि आपको एक पहले हमने सॉल्व किया फंक्शन ऑफ एक्स को, हमने किसके बराबर लिया, वाई के। ओके, वाई के बराबर लिया। अब आप ये देख सकते हैं हम इसकी जगह पे वाई पुट करेंगे और x माइनस 7 क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, राइट। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया x की वैल्यू को, -7 था, उधर जाके क्या हो गया +7। सो वी टुक आउट, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, हम जानते हैं क्लास x जो है फंक्शन ऑफ x y के बराबर है, तो इन द सेम वे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा। x क्या आ गया, फंक्शन इन्वर्स ऑफ y, मतलब x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, फंक्शन इन्वर्स ऑफ y। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और हम क्वेश्चन में जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 2 गिवन है, फंक्शन इन्वर्स ऑफ 3। x का हमारे पास, हम इसको इक्वेट किसके बराबर कर देंगे, क्लास फंक्शन इनवर्स ऑफ 3 में। और यहाँ पर अब आप देखें क्लास, मैंने आपसे पहले कहा था f इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई, x की प्लेस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम यहाँ पे इक्वेट फंक्शन ऑफ है, मतलब f इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 3 अकेला हो गया, मतलब विदाउट एनी सिंबल, एनी अटैचमेंट, मल्टीप्लाई किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू 3। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास ये था, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7। अब हम इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 इज इक्वल टू x माइनस 7, जो कि अब इसके जरिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, वी कैन गिव द नेम, असाइन दिस टर्म एज इक्वेशन नंबर 2, और 2 के अंदर हमने ये वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। डन क्लास। इन द सेम वे पार्ट, अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन इनवर्स ऑफ 7। ओके, फंक्शन इनवर्स ऑफ 7, अब आप क्या करेंगे ना, वही पहला वाला हमने इसमें क्या पुट करना है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, एक फंक्शन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इक्वेशन हम इसके लिए पहली वाली यूज करेंगे, मैंने ये रब कर दिया। हमने फाइंड आउट की थी कि फंक्शन इनवर्स ऑफ x ये होता है। ओके, और हमारे पास इनवर्स की इक्वेशन क्या आई थी, क्लास इनवर्स ऑफ y, हमारे पास इक्वेशन ये आई थी जो हमने सॉल्व की थी, फंक्शन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 7, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। ओके, नाउ क्लास, और हम जानते हैं, वी नो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास इनवर्स में फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन इनवर्स ऑफ 7। फंक्शन इनवर्स ऑफ 7 वी हैव गिवन, जस्ट अ सेकंड क्लास। ओके, फंक्शन इनवर्स ऑफ 7 हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू x। ये देखिए क्लास, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, देखें फंक्शन इनवर्स ऑफ y किसके बराबर होता है, x के। हम फंक्शन इनवर्स, अब यहाँ पर हमें y की प्लेस पर क्या गिवन है, 7 गिवन है, और ये इक्वेशन x के बराबर है। f इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लाइक दिस, f of x। Now class, put the value in equation number in original question। अब हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन विच इज गिवन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7, एंड देन क्लास -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू x। और अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 14। So now put this equation in x is equal to 14, और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, फंक्शन ऑफ इनवर्स, व्हेन वी हैव फंक्शन ऑफ इनवर्स
7. So value of x will be 14. ये देखिए ये इस तरह से सॉल्व होगा। एंड ये हमारे पास एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन भी हैं, पेज नंबर 46 इन योर बुक। आपके पास एग्जाम्पल्स भी गिवन है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी ग्रुप में। पेज नंबर 46 पे इसके एग्जाम्पल्स भी गिवन है। ओके ओके, नाउ फर्दर क्वेश्चंस अब हमारे पास इसके ये हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फंक्शन इनवर्स ऑफ -5। यस क्लास, अब हमारे पास फंक्शन इनवर्स ऑफ -5 गिवन है। फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्पेस। अब यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आई एम पुटिंग फंक्शन इनवर्स ऑफ -5। क्लास यहाँ तक तो ये सेम रहेगा। वी नो दैट फंक्शन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, मतलब जो हमने फंक्शन ऑफ x y के बराबर था, फंक्शन इस y का x का इनवर्स क्या हो जाएगा, फंक्शन इनवर्स ऑफ y। अब हम इसकी जगह पर ये पुट कर रहे हैं। क्लास ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फंक्शन इनवर्स ऑफ -5। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है -5। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में हम जाकर ये पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +7 और इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। ओके क्लास, अब उसके बाद आप देखिए, नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दैट फंक्शन इनवर्स ऑफ -5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। फंक्शन इनवर्स ऑफ -5 हमारे पास क्या आया, 2 आया। ओके, और उसके अलावा जब हमारे पास फंक्शन इनवर्स ऑफ 1/3 होगा, नेक्स्ट कंडीशन फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन इनवर्स ऑफ 1/3, देन हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास मतलब y की वैल्यू कितनी है, अब ये x के बराबर है। ओके, एंड कंसिडर इट इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 ही कंसिडर की है। एंड देन क्लास वी विल इक्वेट 1/3 इज इक्वल टू x minus 7 एंड देन क्लास 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 1/3, 7 इधर माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएंगे। एलसीएम लेंगे, वी विल टेक द एलसीएम 3 and 1 का, इट कम 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड 7 1 जा 7। 8/3 is equal to x. So we can say that हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फंक्शन इनवर्स ऑफ अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इनवर्स क्या आ गया है, वन अपॉन 3 is equal to 8/x, 8/3. See this solution one time, and if you have any confusion then ask me. क्लास में से पूछ लीजिए अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो। Yes class. Is there any confusion? No question? Okay. So now class, this is end of the class. I am taking your attendance. Please open your mic. I am taking your attendance. Announce your name please. B3ZWZ. ये कौन है class? कौन है? First Hamza.
Hamza is present. Zulekha is present. Ishna Nasir and Ishna is present. Ashna. Saqib, Abdul Basit. प्लीज क्लास ये कौन है अपना नाम बताइए. B3ZW जो भी इनका ये है. Arslan. अरसलान. ओके, अरसलान इज एंड में कौन है स्टूडेंट? अरसलान किसी ने यही नाम लिखा है. ओप्पो वन से. This is Samir. ओके, समीर. ओके, एंड ऑफ द क्लास. अल्लाह हाफिज.